to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable or not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup, we also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto on issues of, can you hear me? A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और political stability कायम करने के लिए हुकूमत साजी का जो अमल है और political stability कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनानी है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सकें जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है,
पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते। वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं, इन्होंने काफ़ी एतराज़ात और इश्यूज़ उठाए जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के हवाले से कि 18 महीने के लिए हम इनके साथ हुकूमत में रहें, और वो जो मेरे पार्टी के ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, पख्तूनख्वा दूसरे सूबे से, सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे पार्टी के लोगों ने शिकायत की है कि जिस तरीके से उनका काम नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है कि हमारा जो कमेटी बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून से दूसरी सियासी जमातों से बात करने के लिए, कि उस कॉन्वर्सेशन में जहाँ हम हुकूमत साजी की भी बात करें कि हम इंश्योर करें कि हम अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं वो दूर किया जाए। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, as far as these elections are concerned, unfortunately माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 पे 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए, और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात हैं, जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का सवाल है, तो उस पे एक तो ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned, और हमारा इन इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद, इस एहतजाजन इन इलेक्शंस की जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability। मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें, ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। दूसरे जो हमारे एतराज़ात हैं, जो फोरम्स मौजूद हैं, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है एक्सेट्रा, हम वो फोरम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। साथ साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर जरदारी साहब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायतें उठाई थी, और सदर जरदारी साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को यकीन दहानी दिलाई थी कि हमारा जो ये शिकायतें हैं ये एड्रेस होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये शिकायत इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत शिकायतें हैं, एतराज़ात हैं जो हम जमा करके एड्रेस करवाना चाहेंगे। मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में ये भी वालिद साहब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कहलवाया कि अब आप इस चीज़ का फ़ैसला करवा दें कि जो आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपको प्रूफ्स देंगे, और वालिद साहब पे हम सब भरोसा भी करते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी हुआ है इसको ज़रूर हमें एड्रेस करने का वो ना सिर्फ मौका मिलेगा, मगर उम्मीद ये है कि इंगेजमेंट और इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के नतीजे में हम इन इश्यूज़ को बहस कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्शन में वही एतराज़ात हम उठाते रहें, दूसरे भी उठाते रहें, कौन सा सच्चा है कौन सा नहीं है वो सामने आता ही नहीं है, और उसका इलाज ना निकल जाए। तो हम चाहेंगे इन द लार्जर कॉन्ट्रेस्ट
of political stability in Pakistan, that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis, on major votes, our committee will engage with political parties, and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan कि जो chaos आपको नज़र आ रहा है अपने TV screens, ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतने सारे पॉइंट्स गिर चुके हैं अगले दिनों में, ये जो इंटरनेशनल इदारे परेशान हो रहे होंगे कि या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा नहीं आएगा, जो पाकिस्तान के अवाम फिक्रमंद हैं कि इस हालात में हमारे मसाइल, मैं उनको यकीन दहानी दिलवाना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान बनेगा। पार्लियामान वो फोरम है जहाँ आपके मसाइल हल करवाया जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं, मुल्क के खातिर इंश्योर करेंगे कि ये अमल जो है, जो अब हुकूमत साजी का अमल है, कि ये मुकम्मल हो इंशाअल्लाह ताला, और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े। ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े और एक बार फिर इस पूरा सिलसिला में दिखेला जाए, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सवाल का जवाब लूँगा। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब कुंडरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कंडक्ट करे, वो एक एक करके आपसे सवाल करे। मैं 100 सवाल का जवाब एक वक्त नहीं दे सकूँगा। जनरल बिलावल, आपसे एक सवाल है, उसके 2 पार्ट हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हर हिस्सा लेने वाली जो जमात है वो इन इलेक्शन पर रेजोल्यूशन रखती है और धंधी के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि री इलेक्शन की तरफ जाने दीजिए सूरत हाल को, ताकि क्लियर मैंडेट मिल सके? नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगली कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे या हुकूमती बेंचों का हिस्सा होंगे? जहाँ तक आपने री इलेक्शन की बात किया है, आप मुझे बताएं कि एक तो कैसे आपको पता कि क्लियर मैंडेट मिलेगा? अभी हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, सबका ख्याल था कि क्लियर मैंडेट आएगा और क्लियर मैंडेट नहीं आया। ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं हुकूमत बनाऊँ। अब अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हमारा खून पसीना के मेहनत इस इलेक्शंस में होती है, हमारे लोग शहीद होते हैं, उन पे कातलाना हमला होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि आप इलेक्शन बस आसानी से करें। और अगर हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसी किस्म के केओस मुझे नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है, और उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे। तो इससे मेरा ख्याल में जो मैसेज पाकिस्तान के अवाम भेज रहे हैं, लेकिन हमारा सियासतदान उस पैगाम को सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें। अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों का मैंडेट मिल जाता। पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का जोर ज़बरदस्ती पे ना चले, अब सब मिल के पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक, आप समझे, ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक़ में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें।
تو نہ ایک پولیٹیکل فورس بات کرنے کے لیے تیار ہے, دوسرا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بھی بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے. اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے, بسم اللہ سو کریں, لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا, تو پاکستان کے نظام کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو, جیسے بھی صورتحال ہو, پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی, کیوس, غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی. تو وہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اعتراضات کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھاتے ہوئے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے. جی ستی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ, دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے, لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہے, جو بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی طے کیا جا سکے. وہ اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب, آئینی عہدے جو ہیں بڑے. ستی صاحب, بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹی سے. کسی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے, کیونکہ سندھ کو تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اریبہ صاحب, So as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس طریقے سے ہم part of the government نہیں بنیں گے. مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے, بجٹ کے ووٹس ہے, لیجسلیشن ہوں گے, اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی, جو آپ نے سوال کیا, شاید آپ نے بھی سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حق ہے کہ ہم ان الیکشنز میں لڑیں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس 17 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں, تب بھی ہم نے اسپیکر کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, پریزیڈنسی کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. جہاں تک مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے, وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے, پاکستان جل رہا ہے, اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے, تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ
संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। यासिर मलिक साहब पावर शेयरिंग की बात हुई है। हो गए? जी गुरमानी साहब, जी गुरमानी साहब। तो मेरा तो हमेशा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ज़रूर ये मौक़िफ़ होगा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान अपने टर्म्स कंप्लीट करे और उसमें ये भी आता है कि अपना वज़ीर आज़म भी अपना टर्म मुकम्मल करे। जहाँ तक जो आपने द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज़ दिस कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफ़रत और तकसीम की सियासत करना है तो मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम बचे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का अब सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फ़िक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये ज़िम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़े। अब सियासत नहीं, इंतहा पसंदी का सियासत किया जा रहा है, ज़ाती इंतकाम का सियासत। तो वो जब तक हम एड्रेस नहीं करेगा, और इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों हाथ से ताली बजता है, ये जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं बड़ा सही सवाल है और बड़ा मुश्किल होगा कि वो कॉन्टीन्यूटी जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एकेडमिक स्टेबिलिटी भी आएगा, बड़ा मुश्किल होगा कि वो हम पॉलिटिकल कायम करें। मलिक सही साहब। अगर आवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती। I find this a very funny question because लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफ का तारीफ़ ही करूं, तनकीद ना करूं। मैं तालियां उनको बुझा दूं और उम्मीद रखे कि मुझे वोट पड़ेगा। मैंने ज़रूर जो उनका कुठाया है उनको भी मेरे ख़्याल में मानना चाहिए कि जो गलतियां हुए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके अपने फ़ैसले हैं। जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, ये जमहूरियत का असूल है। ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान तो हमारा ज़िम्मेदारी है, ये हमारा काम है कि उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनमें उन्होंने जो गलतियाँ किया हैं, उनमें उनके पॉलिसीज़ पे जो हमारा एतराज़ात है उस पर हम ज़ोर दें, उस पर हम हाईलाइट करें। अब जहाँ तक आपकी दूसरी सवाल है, अगर पाकिस्तान के अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। अब मुझे वो मैंडेट नहीं दिया गया। जहाँ तक मुस्लिम लीग का पॉलिसीज़ के सवाल है, ज़रूर हमारा मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ राय होगा, मगर पार्लियामान की खूबसूरती ये है, जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आप अपना राय रखते हो, मैं अपना राय रखता हूँ। आप समझते हैं कि आपका सबसे बेस्ट राय है, सोल्यूशन है किसी एक मसला का। मैं समझता हूँ कि मेरा राय, मेरा मौक़िफ़
सबसे बेस्ट सोल्यूशन है किसी मसला का। हो सकता है कि आपका राय से हो सकता है कि मेरा राय से हो, उससे भी ज़्यादा मुमकिन ये है कि शायद मेरा राय और आपके राय के दरमियान में जो राय है वो सबसे बेस्ट हल हो उस मसला का। तो पार्लियामान का, जमहूरियत का ये एक तरीका है कि हम पार्लियामान में और पार्लियामानी जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं। तो अगर कंसेंसस की बुनियाद पे हम फैसले करते हैं तो मेरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को एड्रेस कर सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसका नुकसान ना सिर्फ एक सियासी जमात का होगा, उसका नुकसान इस मुल्क का होगा। अलमदार शुक्रिया। बिलावल साहब, ये बताइएगा, आपने अपनी पूरी कैंपेन जो चलाई, आपने पहले मंशूर भी दिया। हमने देखा कि माजी में पंजाब आपका गढ़ होता था, लेकिन आज पंजाब में आपको चंद सीटें मिलती हैं। तो यही मफामत की पॉलिसी पहले भी आपका सियासी नुकसान कर चुकी है। क्या अब आप समझते हैं कि जो आपने जियाले को थोड़ा जगाया था, क्या वो जियाला फिर आपके मंशूर के साथ खड़ा होगा? देखो, आप जो अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचता ना तो बड़ा आसान होता। मैं इधर खामोश होकर बैठ जाता, मैं कहता खान जाने, मियाँ साहिबान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताएं कि हालात क्या है इस मुल्क में। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या है, सूबा पंजाब, सूबा पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल मेरा फ़ायदा है। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती थी तो हम पीटीआई को भी और नून लीग को कहते कि आप हमें बना दे, वरना ये नहीं होता। मगर क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से, उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान के अवाम के हम सोच रहे हैं। ज़रूर मेरा इसमें सियासी नुकसान होगा, मगर आपने हर मौक़िफ़ पे ये सोचना है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ मेरा सियासत अहमियत रखता है, मेरा अपने आप को हर कीमत पे किसी कुर्सी पे बिठाने इस मसाइल का हल है, या इस निज़ाम को जिसके लिए हमने शहादतें दी, जिसके लिए मेरे कारकुनों ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरा पार्टी ने शहादतें दी, इस निज़ाम को हम चलाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पेस है पंजाब में, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, और इस साजिश जो है वो इस 2024 के इलेक्शन में मौजूद था, वो एक अमल जारी है। मगर मैंने आपको कहा था ना, मैंने वालिद साहब से कहा इस चीज़ का फ़ैसला मुझे दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इस इलेक्शन में करवाया गया उसका फ़ैसला होना पड़ेगा। मैं ये नहीं उम्मीद रख सकता अपने पार्टी के साथ कि हम हर बार उनको कहें कि हम जमहूरियत के खातिर, हर चीज़ के खातिर, और बार बार हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। और आखिर में जो तमाम सियासी जमातें से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस इलेक्शन में अब किसी कोई रहा नहीं ना जो 30 साल से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, आज आपको पता है कि आपको कैसे और क्यों फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से मिलते हैं। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के दौर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते हुए आपका फॉर्म 45 का रिज़ल्ट पोलिंग स्टेशन से निकलवा दिया। आपको पता है कि इंटरम हुकूमत में जो कंसेंसस का फॉर्मूला था वो कैसे हुआ, ताकि कोई बायस सेटअप ना आए, मैं अपनी मर्ज़ी से ना करूं, हम मिल बैठ के अपोजिशन की बात करें। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट लेकर आए, और हमारा हुकूमत था, हम अमेंडमेंट नहीं लेकर आते 2013 के इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन, अपना मर्ज़ी का इंटरम गवर्नमेंट, और हम ली धांधली भी कर सकते थे। लेकिन हमने वो रिफॉर्म अपने दौर में लेकर आया कि हम अपॉइंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। किसने कहा पीटीआई को कि मैदान छोड़े?
किसने कहा उनको कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़े? अगर राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलके इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, अपॉइंटमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। अब आप चाहते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि मैं इंतहा पसंदी इंतहा पसंद वाला सियासत करूं, वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीरियस जमात है। मैंने इस कैंपेन में और अपना सियासत में साबित कर दिया है कि बाकी सियासतदान मुझे उम्र में ज़रूर बड़े होंगे, मगर पाकिस्तान के अवाम ये मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि मैं अपनी बेनिफिट देखते हुए कोई एक्सट्रीम पोजीशन लूँगा। नहीं साहब ये बताइएगा, साहब एक हिस्सा तो आपने जवाब दे दिया अभी, लेकिन इसी के साथ सप्लीमेंट्री ये है कि अभी जिक्र किया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ साजिश हुई। एक तो ये बताइएगा कि ये साजिश किसने की? अगर मेनली इसमें कहीं पे आपको हिस्सेदार नज़र आती है तो आपने उन्हीं के साथ बैठना है। फिर जिन तहफ़्फ़ुज़ात की आपने बात की है कि इलेक्शन के हवाले से आपने सदर जरदारी साहब के सामने रखा है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात जो साबित हो जाते हैं, वो तमाम जो आपके खदशात हैं वो साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? जहाँ तक जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इश्यूज उठाए गए हैं, हमने इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने रखा। हमने इलेक्शन कमीशन को लिखते रहे जो भी हमारा एतराज़ात हैं। वालिद साहब से इसलिए मैं फ़ैसला चाहता हूँ कि वालिद साहब ने सी को ये गेंदबानी दिलाई इलेक्शन के दौरान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और मेरे लोगों का एतराज़ात है उस पर, तो वो ज़रूर उठाया जाएगा। जहाँ तक अगर उन एतराज़ात की वो उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे, एड्रेस तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आएँ और इस किस्म का कानून साजी करें, इस किस्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करें जिससे आगे जाके कोई इलेक्शन में ना मैं उंगली उठा सके ना कोई और उंगली उठा सके। ये वाहिद तरीका है कि हम इस इशू को एड्रेस करें। लेनी सर, लेनी Sure. I think it's extremely unrealistic, and I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punctures and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political state. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone.
The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. You delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges. And while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties, it will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. Last question, जी सोलंकी साहब. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम के हवाले के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है. एमक्यूएम ने पूरी बंद लाशों के अलावा, बंदाखोरी के अलावा कुछ नहीं दिया.
पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं। तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरीबंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फ़ैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तशवीश करना, तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं, आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफ़रत और तकसीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफ़रत की बुनियाद पे मेरे शहर को तकसीम हम आपको नहीं करने देंगे। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना होगा। मुल्क में सियासी बहरान मौजूद है और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को वजारतें संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नून लीग से ताल्लुकात पर पार्टी के रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड, धांधली और दीगर उमूर पर पार्टी की CEC गौर करेगी। अपडेट आपको कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएगी। उनकी जानिब से ये भी बता दिया गया है कि PPP एक कमेटी बना रही है जो कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी इंगेज करेगी। उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हम PMLN के कैंडिडेट को, जो PM के लिए कैंडिडेट होगा, उसे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रही है।